Hello, friends. Welcome to you and me. Today, we will discuss the difference between private company and public company and how we can convert a private company into public company and public company into private company. So, in the last lecture, as we have discussed the various kinds of company, and you are very much aware about the private company and public limited company, one man company, dormant company, in the same way associate company. So let's start with the basic difference between private limited company and public limited company. Before starting the difference between private limited company and public limited company, I am just going to tell you the basics of private limited company and public limited company. So private limited company is a company which can start with two persons and have a minimum share capital of 1 lakh, and they have a restriction on the, we can say, transferable of shares, and they cannot demand the money from the public, or they cannot subscribe the money from the public. But in a public limited company, the minimum member should be 7 and the minimum capital is 5 lakh, and they can transfer their shares, the member can transfer their shares, and they can subscribe the capital from the public. So this is the basic difference between private limited company and public limited company. Now let's start with the basic difference between both kinds of company. The first one is meaning. As I have already said, that minimum capital for this is 1 lakh and right to transfer and the shares are restricted. They cannot transfer their shares to the other person. In case of public company, the minimum capital is 5 lakh and they can demand or subscribe the capital from the public. This is the first difference. Second one is, if paid up share capital does not exceed rupees 50 lakh and turnover as per last audit account does not exceed rupees 2 crore. अगर एक प्राइवेट कंपनी जो है उसकी कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है और उसकी एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से कम है या इसके बराबर है, तो इस प्राइवेट कंपनी को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल कंपनी बोलते हैं. कोई भी प्राइवेट कंपनी क्या बन जाएगी? स्मॉल कंपनी बन जाएगी. एंड इट विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशल एग्जम्पशंस ऑफ स्मॉल कंपनी इफ द कैपिटल रिमेन्स 50 लाख एंड द एनुअल टर्नओवर रुपीज 2 करोड़. बट एक पब्लिक कंपनी जो है वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती. नेक्स्ट इज मिनिमम मेंबर्स ऑफ रिक्वायर्ड. सो 2 मेंबर्स मस्ट बी देयर. मतलब कि कोई भी कंपनी खोलने के लिए हमें मैक्सिमम जो नंबर मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए. और मैक्सिमम ये कितने हो सकते हैं? ये 200 तक हो सकते हैं. इससे ज़्यादा एक प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स नहीं हो सकते. लेकिन एक पब्लिक कंपनी में हमें मिनिमम नंबर जो है वो 7 है और इसके मैक्सिमम के ऊपर जो मैक्सिमम मेंबर्स है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है. देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, क्योंकि वो पब्लिक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो जितनी मर्जी चाहे पब्लिक जो है वो किसी कंपनी के शेयर्स जो है वो परचेज कर सकती है. नेक्स्ट इज नेम ऑफ द कंपनी. जब भी कोई प्राइवेट कंपनी खुलती है तो वो अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है वो यूज करती है. बट इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड दे यूज द वर्ड लिमिटेड इंस्टेड ऑफ प्राइवेट लिमिटेड. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी. प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट इन आर्टिकल. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट कंपनी है अगर वो अपने आर्टिकल में किसी तरह के कोई चेंज करना चाहती है तो उसको किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? दे हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स. But in case of public limited company, they have to pass a special resolution in a meeting and after that they can make a certain changes in their article. Article of association होता है internal rules and regulation जिसके थ्रू वो अपनी कंपनी को चलाते हैं. तो कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी है उसको अपने इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस में किसी तरह का कोई चेंज करना है, देन दे हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द मेंबर्स. बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी दे हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. नेक्स्ट इज इशू ऑफ सिक्योरिटीज. कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वो राइट इशू और बोनस इशू जो है वो पहले इशू करेगी, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है वो क्या कर सकती है? वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू भी अपने लोगों से जो है पैसे इकट्ठा कर सकती है, एज वेल एज दे कैन ऑल्सो इशू द राइट एंड बोनस शेयर. Next is public offer to be dematerialized offer.
फॉर्म, तो इस केस में तो ये एप्लीकेबल होगा ही नहीं, क्योंकि जब हम पब्लिक से पैसा इकट्ठा ही नहीं कर सकते तो पब्लिक के साथ हम उसकी डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म के बारे में भी बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये चीज जो है वो पॉसिबल है। सिक्योरिटी इन पब्लिक ऑफर टू बी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, अगेन द पॉइंट इज दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि हमारा जो सिक्योरिटीज है वो मार्केट में है ही नहीं, प्राइवेट लिमिटेड की है ही नहीं, तो स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो अपने स्टॉक्स को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में क्या करवा सकते हैं, लिस्ट करवा सकते हैं। परचेज लोन ऑफ फॉर परचेज ऑफ ओन शेयर्स, इस केस में प्राइवेट कंपनीज के केस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने ही शेयर परचेज करने की पावर नहीं होती, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। नो फाइनेंशियल असेसिस टू बी गिवन टू परचेज इट्स ओन शेयर, अपने ही शेयर परचेज करने के लिए इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने ही शेयर्स परचेज करने के लिए किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, प्राइवेट कंपनी किसी भी तरह के डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। It is in case of public limited company, it is allowed if the capital is 100 crore and the turnover is 500 करोड़। अगर एक कंपनी की जो कैपिटल है वो 100 करोड़ है और उसकी टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर जो है वो 500 करोड़ है, तो फिर ये क्या कर सकती है, इट कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। कोरम होता है नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन अ मीटिंग, इसका मतलब होता है नंबर की कितने नंबर का होना जरूरी है। तो किसी भी प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स के बिना कोई भी मीटिंग होल्ड नहीं की जा सकती, यानी मिनिमम वहां पर 2 मेंबर्स का होना बहुत जरूरी है। बट इन केस of public limited company this is 5 if the members are for 1000, यानी अगर 1000 तक members है तो आपके मिनिमम members कितने होने चाहिए, 5। अगर वो 1000 से 5000 तक है members तो फिर 10 members का होना जरूरी है, 15 members का होना जरूरी है। एंड अगर आपके मेंबर्स जो है वो 5000 एंड अबव है तो उस केस में 30 मेंबर्स का मिनिमम एक मीटिंग में प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर किसी मीटिंग में कोरम जो है वो पूरा नहीं हो पाता तो वो मीटिंग जो है वो होल्ड कर ली जाती है और वो नेक्स्ट टाइम उसको आगे किया जाता है। लेकिन जो मैंने आपको नंबर बताया, ये नंबर जो है वो प्रेजेंट होना जरूरी है। लाइक अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने कोई मीटिंग बुलाई और उसमें 3 ही मेंबर प्रेजेंट हुए तो वो मीटिंग जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। पर यहाँ पर प्रॉक्सी वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर वो प्रेजेंट है तो उस केस में वो मीटिंग जो है वैलिड हो जाती है विद सर्टेन एक्सेप्शंस वी कैन से। नेक्स्ट इज इंटरनल ऑडिट, इस केस में अगर जो टर्नओवर है वो 200 करोड़ से कम है, पिछले किसी भी साल में 200 करोड़ से कम है और 200 करोड़ से ज्यादा है और 200 करोड़ के बराबर है, या फिर लोन फ्रॉम बैंक और एनबीएस रुपीज 100 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर किसी कंपनी ने लोन ले रखा है किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 100 करोड़ का, तो उस केस में और अगर इसकी टर्नओवर जो है वो 200 करोड़ से ज्यादा है तो इसको इंटरनल ऑडिट जो है वो करवाना बढ़ेगा, अदरवाइज इसके ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं है। लेकिन एक पेडअप अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 50 करोड़ पे है पेडअप कैपिटल और टर्नओवर जो है वो 200 करोड़ है और उसका बैंक का जो लोन है वो 100 करोड़ है और पब्लिक डिपॉजिट जो है वो 25 करोड़ के आसपास है, तो उस केस में इस कंपनी को अपना इंटरनल ऑडिट जो है वो करवाना पड़ेगा। सो दीज आर द कंडीशंस वेयर द इंटरनल ऑडिट इज कंपल्सरी, अदरवाइज इसमें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो इंटरनल ऑडिटर जो है वो अपॉइंट करना ही पड़ता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में मैंने आपको जो कंडीशन बताई, अगर वो उसके पार हो जाती है, यानी अगर उसके पास 100 करोड़ का लोन है और 200 करोड़ की टर्नओवर है, तो उस केस में उसको इंटरनल ऑडिट जो है वो करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एनुअल इवैल्यूएशन ऑफ द इन द बोर्ड रिपोर्ट्स, इसके ऊपर अपनी जो इसकी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं वो आपको जर्नल मीटिंग में नहीं देनी पड़ती, यानी आप कोई भी मीटिंग
होल्ड करोगे तो उसमें आपको अपनी एनुअल रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट नहीं करवानी पड़ती। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अगर आपकी कैपिटल जो है पेड अप कैपिटल 25 करोड़ और उससे ज्यादा हो तो फिर वो आपको अपनी जो रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, वो बोर्ड से क्या करवानी पड़ती है, इवैल्यूएट करवानी पड़ती है। बोर्ड्स का मतलब होता है जो आप डायरेक्टर्स चूज करते हो उनके सामने आप अपनी एनुअल रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हो कि पूरे साल में हमारा ये जो है वो लेखा जोखा रहा, तो उससे आपको वो रिपोर्ट जो है वो अप्रूव करवानी पड़ती है। रोटेशन ऑडिटर एप्लीकेबल इन केस पेड अप कैपिटल इज 20 करोड़ और मोर। अगर आपका जो कैपिटल है वो 20 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो उस केस पे आपको एक रोटेशनल ऑडिटर जो है वो अपॉइंट करना पड़ेगा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अगर वो कैपिटल जो 10 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको वो इंटरनल रोटेशन ऑडिटर जो है वो अपॉइंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यानी आपको 10 करोड़ की कैपिटल के ऊपर ही रोटेशन ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। इस केस में आपको 20 करोड़ की कैपिटल के ऊपर रोटेशनल ऑडिटर की जरूरत पड़ेगी। इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो डायरेक्टर्स है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है वो कितने हैं, 2 होने चाहिए और यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑडिटर डायरेक्टर की हमें जरूरत नहीं पड़ती। इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देयर इज नो नीड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बट देयर मस्ट बी 2 डायरेक्टर एंड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी दे मस्ट हैव 3 डायरेक्टर्स एंड 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उनके पास एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और वी कैन से 1/3 जितने भी उनके डायरेक्टर्स हैं उसका 1/3 जो है वो क्या होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। दिस प्रोविजन ऑफ और वी कैन से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट था इट केम्स इन द कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट बाय रोटेशन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी के केस में ये पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट 2/3 of the total number of directors be liable to retire by rotation and eligible of being reappointed in AGM। तो अब इसका मतलब मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, अदरवाइज ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के टाइम पर पढ़ेंगे। क्या होता है कि हमारे जो जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसमें से कुछ डायरेक्टर्स को हम टाइम आने पर, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी जो हमारी जो वो है क्या कहते हैं प्रेसिडेंटशिप है वो 5 साल के बाद क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो 5 साल के बाद चेंज हो जाता है और उसके बाद हम क्या करते हैं, नई गवर्नमेंट आती है, फिर उनको दोबारा से अगर वोट्स मिलते हैं तो वो दोबारा से अपॉइंट हो जाते हैं, अदरवाइज क्या होता है कि नए आ जाते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि जितने आपके डायरेक्टर्स है उसका 2/3 पार्ट आपको रिटायर करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। 5 साल के बाद वो डायरेक्टर्स जो है वो क्या होंगे, रिटायर होंगे। अगर आप उसी को दोबारा से रीअपॉइंट करना चाहते हो तो एनुअल जनरल मीटिंग होगी, वोटिंग राइट के ऊपर आप दोबारा से उसको क्या कर सकते हो, रीअपॉइंट कर सकते हो। So this is the meaning of rotational retirement and reappointment। तो ये प्राइवेट कंपनी में नहीं होता, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 2/3 यानी अगर मान लो मेरे पास 6 डायरेक्टर हैं तो 6 का 2/3 मतलब कितना हो गया, वी कैन से 4 डायरेक्टर्स जो हैं वो रिटायर होंगे और यही 4 डायरेक्टर्स जो है वो आप दोबारा से रीअपॉइंट कर सकते हो इन द एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। यहाँ पर आपको किसी भी कंपनी खोलने के लिए किसी भी डायरेक्टर के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर ये कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है टू ओपन अ कंपनी और वी कैन से टू रजिस्टर अंडर द और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनीज एक्ट 2013। So these are the basic difference between private company and public limited company, and you definitely get the question in the final exam, what is the basic difference between private company and public limited. I have discussed near about 17, so try to write all the points in a brief, but if the time is short and you get the question in 2 marks or in the 3 marks, then you can write 5 to 6 points in your answer. So next let's see what are the special exemptions are available to a private company, कि उनको पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मुकाबले क्या ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले कि 7 मेंबर होने चाहिए, यहाँ पर कितने मेंबर से ही आप कंपनी खोल सकते हो, 2 मेंबर से ही खोल सकते हो। दूसरा, यहाँ पर इनको कोई भी प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोच रहे होगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन प्रॉस्पेक्टस एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, एक प्रॉपर
लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके लिए हमें एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। कोई भी अगर आपने पब्लिक सिक्योरिटीज लेनी है तो उसके लिए आपको पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, और प्रोस्पेक्टस जो है उसमें किसी भी तरह के फ्लॉज नहीं हो सकते। ये हम प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में रीड आउट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी एग्जाम्पशन ही क्या मिल गई कि इनको प्रोस्पेक्टस ही इशू करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पशन रिगार्डिंग शेयर कैपिटल, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि ये लोग जो हैं वो 1 लाख की कैपिटल से ही अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। और रिस्ट्रिक्शंस इज एप्लीकेबल टू कंपनीज रिगार्डिंग द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, वोटिंग राइट, इशू ऑफ शेयर, टर्मिनेशन ऑफ डिसअपॉर्शनमेंट, एक्सेसिव राइट डू नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी। यानी यहाँ पर जो वोटिंग राइट है, इशू ऑफ शेयर्स है, इनके ऊपर ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर नहीं लगाई जाती। नेक्स्ट इज एग्जाम्पशन रिगार्डिंग द डायरेक्टर। अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर इनको कितने डायरेक्टर्स की जरूरत होती है, 2 डायरेक्टर की जरूरत होती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इनको चाहिए ही नहीं। और प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी नीड नॉट रिटायर बाय रोटेशन, वो रिटायर भी नहीं होता, तो हमारा वो वाला काम भी बच जाता है कि बार बार हमें नए डायरेक्टर्स ढूंढने पड़े या फिर एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी पड़े टू अपॉइंट अ डायरेक्टर। पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विदाउट पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर कोई व्यक्ति आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बना हुआ है फॉर द प्रॉफिट पर्पज ओनली, यानी वो सिर्फ प्रॉफिट लेता है और उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसको भी आप कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। द प्रोविजन एक्सक्लूडिंग एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन वोटिंग एट वोट प्रोसीडिंग डज नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी। अगर एक मेंबर जो है वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट की वजह से किसी भी मीटिंग में मेंबर बनना चाहता है, मतलब कि पार्टिसिपेट करना चाहता है और वो नहीं पब्लिक में वो ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल नहीं है। सो दीज आर द एक्सम्पशंस रिगार्डिंग द डायरेक्टर। नेक्स्ट इज एक्सम्पशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। द रिस्ट्रिक्शन एज टू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज टू विच अ पर्सन कैन अपॉइंट एज अ डायरेक्टर इज 20 इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एंड 10 इन अ पब्लिक कंपनी। यानी अगर एक व्यक्ति किसी कई जगह पर डायरेक्टरशिप करना चाहता है तो वो 20 प्राइवेट कंपनीज का डायरेक्टर बन सकता है एट वन मोमेंट, लेकिन पब्लिक कंपनी अगर वो होल्ड करता है तो वो कितनी हो सकती है, सिर्फ 10 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज एग्जम्पशन रिगार्डिंग मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिगार्डिंग फिक्सिंग और इंक्रीजिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल ऑफ अ कंपनी आर नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। यानी वो अपने मैनेजमेंट को, वो अपने मेंबर्स को, जो भी वहां पर काम कर रहे हैं, उनको कितना रेम्यूनरेशन देंगे ये उनके हाथ में है। उसके ऊपर कंपनी लॉ ने किसी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी हैं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013। ऑडिट कमेटी, प्राइवेट कंपनी में हमें ऑडिट कमेटी की जरूरत नहीं होती। अभी हमने ऊपर भी डिफरेंस में भी पढ़ा, लेकिन यहाँ पर इनको जरूरत पड़ती है, बट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। Now let's start with the main topic, that is conversion of companies into public limited or public limited into private company. So according to Indian Companies Act 2013, allow an existing company of other class by altering its memorandum of association in the manner prescribed in chapter 2 of Companies Act 2013। तो कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी जो है वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करके अपने आप को किसी भी टाइप में कन्वर्ट कर सकती हैं। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी। तो अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहती है तो उसके लिए हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सो सेक्शन 14 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अब ये याद रखना आप लोग, सेक्शन 14 of 2013 play an important role during conversion of private company into a public company। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है, जो कि सेक्शन 14 के अंदर मेंशन किया हुआ है, वो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू जनरल मीटिंग में पास करके
ठीक करवाना पड़ेगा, यानी वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 विच कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। उसको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक जनरल मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी, वहां पर शेयर होल्डर्स आएंगे, उनसे एक रेजोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन, उससे वो पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही ये क्या कर सकते हैं, अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 तरीके हैं जिससे कंपनी जो है अपने आप को प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकती है। फर्स्ट इज कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट। कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट होता है कि जो अभी हमने ऊपर स्पेशल एग्जाम्पशंस पढ़ी जो प्राइवेट कंपनी को अवेलेबल हैं, अगर कोई प्राइवेट कंपनी मेंशन की हुई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती, कंपनी एक्ट में जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा नहीं करती, यानी अगर उनकी कैपिटल जो है, टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, और 2 करोड़ नहीं 10 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, इसी तरह से उनकी जो कैपिटल है वो 5 लाख से ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, वो अपने आप में ही एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो बन जाती है। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट इज कन्वर्जन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अगर कोई लॉ उनको कहता है, कंपनी एक्ट उनको बोलता है कि अब आपको अपने आप को प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, उनको जो एग्जाम्पशंस है वो देनी बंद कर दी जाती हैं, तो उसको उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ये होता है कन्वर्जन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज कन्वर्जन बाय चॉइस। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन खुद को अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करके अपने आप को पब्लिक में कन्वर्ट करना चाहती है, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन बाय चॉइस। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर कि अगर कोई कंपनी अपने आप को चेंज करना चाहती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, तो फिर वो क्या करेगी। सबसे पहले वो अपनी बोर्ड मीटिंग बुलाएगी। उस बोर्ड मीटिंग में उनका एजेंडा क्या होगा, दे हैव टू पास अ रेजोल्यूशन टू गेट अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहले मैंने अभी ऊपर डिफरेंस में भी हमने पढ़ा था कि वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर सकते हैं बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको परमिशन देता है तो वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेंगे कि हम अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज करना चाहते हैं, सो दैट वी कैन कन्वर्ट अवर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। अब इसके बाद दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। अब उनको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस शेयर होल्डर से परमिशन लेने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग में वो सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजेंगे, टाइम देंगे, प्लेस बताएंगे कि इस दिन ये मीटिंग जो है वो हेल्ड होगी। तो ये ईजीएम जो है वो सेट की जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 102 ऑफ कंपनीज एक्ट, टू अप्रूव नोटिस ऑफ ईजीएम अलोंग विद एजेंडा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड टू द नोटिस ऑफ जर्नल मीटिंग। अब जब हम ईजीएम बुलाते हैं तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, ईजीएम बुलाने का हमने सारा एजेंडा फिक्स कर लिया। अब ये ईजीएम का नोटिस, उसमें हम क्यों बुला रहे हैं ये मीटिंग, उसका सारा बयान कि एजेंडा क्या होगा उस मीटिंग का, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, हम क्यों कन्वर्ट करना चाह रहे हैं प्राइवेट टू पब्लिक, तो वो सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इसके साथ क्या कर दी जाएंगी, एनेक्स्चर कर दी जाएंगी। नाउ इशू ऑफ ईजीएम नोटिस। अब हमने ये रेजोल्यूशन पास कर लिया कि ठीक है हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग बुला रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा, ये नोटिस जो है वो सारे डायरेक्टर्स को, ऑडिटर्स को, कंपनी को एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 101 जिन जिनको जरूरत है उन सबको ये नोटिस जो है वो भेजा जाएगा। अब जैसे ही वो नोटिस जो है वो भेजा गया, उसके बाद क्या होगा, हमारी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग होगी। उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग में हम शेयर होल्डर्स की परमिशन लेते हैं, हम बाकी मेंबर्स की परमिशन लेते हैं दैट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट अवर कंपनी इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसके बाद वी हैव टू फाइल द फॉर्म, certain forms have to be filled in the ROC, registrar of the company. Few e-forms will be filled with concerned registrar of companies at different stages. तो अब हम क्या करते हैं, हम कुछ e-form जो है वो भरते हैं। ये सारी परमिशंस हमने ले ली हैं, उसके बाद हमें कुछ e-forms भरने होते हैं। e-form में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो MGT 14 है, for filing special resolution with ROC passed of the conversion of private company to public company,
filled with the concerned ROC within 30 days of passing the special resolution in the EGM. अब जब हमने सारे डिसीजन ले लिए तो विद इन 30 डेज हम ये फॉर्म भरते हैं और वो कहाँ पर सबमिट करवा देते हैं, अपने ROC में सबमिट करवा देते हैं विद ऑल द एजेंडाज, विद ऑल द स्पेशल रेजोल्यूशंस, जो भी हमने नोटिस जारी किए थे, जो भी हमने परमिशंस ली थी, जो भी हमने फॉर्म भरे, वो सारे के सारे हम क्या करते हैं, ROC में फाइल कर देते हैं. Now, attachment of E-Form MGT 14, notice of EGM with explanatory statement, इसके अलावा certified real copy of special resolution, altered MOA and AOA, जो भी हमने changes किए as per the requirement of the Companies Act 2013, वो सारा कुछ मैंने अभी आपको बताया. हम क्या क्या भरेंगे, एक EGM का जो हमने नोटिस जारी किया था उसकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो हमने उस पर दी थी, इसके अलावा जो हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, जो हमने चेंजेस किए, क्योंकि हमें चेंज करना पड़ेगा ना अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या चेंज करना है, आपको प्राइवेट से कंपनी क्या बनानी है, लिमिटेड बनानी है. इसके अलावा जो कैपिटल है वो 1 लाख से कितनी हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी. तो इसके अलावा आपकी जो मेंबर्स है, आप प्रोस्पेक्टस भी आपको इशू करना पड़ेगा. तो ये सारे क्या हैं, ये चेंजेस हैं जो आपको अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में करने पड़ेंगे. तो आप एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो भी आपके चेंजेस हैं, अल्टर्ड एमओए और एओ है, वो भी आपको कहाँ सबमिट करवाना पड़ेगा, अपने आरओसी में सबमिट करवाना पड़ेगा. एज पर रूल 33 कंपनीज रूल 2000 फॉर इफेक्टिंग द कन्वर्जन द एप्लीकेशन शेल बी फाइल्ड इन द आरओसी with form number INC 27 with prescribed fees. फिर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, आरओसी में वो सारे के सारे डिपॉजिट करवा दिए विद द प्रिस्क्राइब्ड फी. देन स्क्रूनिटी और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स डन फ्रॉम देम. उसके बाद क्या होता है, आरओसी उसको चेक करती है. अगर आरओसी को सब कुछ ठीक लगता है तो एक प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक में चेंज हो जाती है. अब जैसे ही ये चेंज होती है तो उसके बाद हमें कुछ पोस्ट कन्वर्जन फॉर्मेलिटीज को भी पूरा करना पड़ता है. तो सबसे पहले क्या है कि हमें जितने भी कंसर्न्ड पर्संस हैं, लाइक एक्साइज, सेल टैक्स ऑफिसर्स, इसके अलावा हमारा पैन कार्ड, हमारी बैंक डिटेल्स, हमारा जो जितने भी आप क्या होगे कि विजिटिंग कार्ड्स हैं, जो हमारा कंपनी का बोर्ड है, वो सारे हमें क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे. जो भी उससे कंसर्न है, जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, जितने भी हमारे वी कैन से सप्लायर्स हैं, उन सबको हमें बताना पड़ेगा कि ये हमारी कंपनी जो है वो प्राइवेट से किस में कन्वर्ट हो गई है, पब्लिक से कन्वर्ट हो गई है. सो दिस इज द प्रोसीजर. तो अगर मैं इसको ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ब्रीफ में हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ, हमने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने की कोशिश करी विद द हेल्प ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया टू कॉल ईजीएम. इसमें इस ईजीएम में हमने ये स्पेशल रेजोल्यूशन एजेंडा और हमारा जो भी इशू था वो हमने पास कर लिया थ्रू द स्पेशल रेजोल्यूशन. ईजीएम हेल्ड करी, शेयर होल्डर से परमिशन ली, इसके बाद हमने ई फॉर्म भरे. ये ई फॉर्म जो है वो हमने कहाँ पर डिपॉजिट करवा दिए, अपने आरओसी में डिपॉजिट करवा दिए विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस. अगर आरओसी को सब कुछ सही लगता है तो हमारी कंपनी जो है वो प्राइवेट से पब्लिक में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है. सो दिस इज अ सिंपल प्रोसीजर थ्रू विच वी कैन कन्वर्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी. सो नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी. इसी तरह से अब जो प्राइवेट कंपनी है उसने अपने आप को पब्लिक में कन्वर्ट किया था, तो पब्लिक कंपनी जो है वो अपने आप को किस पे कन्वर्ट कर सकती है, प्राइवेट में कर सकती है. ऊपर था सेक्शन 14, यहाँ है सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 से अबाउट ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम with the term of 61. This section explain about the change in alteration of memorandum for the purpose prior permission of central government is required. Section 14 of company say about the alteration of article. अब जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी चेंज करना है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी चेंज करना है. तो सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, according to section 13, 14 and 18 of the act need to be read with section 41 of the company's incorporation
4th Amendment 2018 डिफाइन द स्टेप्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। तो ये सेक्शन है 2018 के जो कि हमें बताते हैं कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो किस तरह से चेंज हो सकती है इनटू अ प्राइवेट कंपनी। तो सबसे पहले दे हैव टू हेल्ड अ बोर्ड मीटिंग हेल्ड फॉर कन्वर्जन डिसीजन, द बोर्ड अप्रूव द कन्वर्जन प्रोसीजर, द मिनट्स ऑफ द मीटिंग शुड बी मेड। तो जो भी आप बोर्ड मीटिंग बनाते हो उसकी आपको क्या मेंटेन करने पड़ेंगे, मिनट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। मिनट्स क्या होता है कि उस पूरी मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, क्या एजेंडा था, कितने मेंबर प्रेजेंट थे, उसमें हमने क्या डिसीजन लिए, वो सारा रिकॉर्ड जो है वो हमें मेंटेन करना पड़ता है। इसके बाद जो कंपनी है वो क्या करती है, एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी फॉर द कन्वर्जन प्रोसीजर। वो पूरे कन्वर्जन करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को क्या करती है, अपॉइंट करती है। जब ये अपॉइंटमेंट हो जाती है, वन ट्रू कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी इन फेवर ऑफ एनी प्रोफेशनल टू रिप्रेजेंट द कंपनी बिफोर द रीजनल डायरेक्टर। अब वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रीजनल डायरेक्टर के सामने कंपनी के बारे में बात करेगा। लाइक अगर आपकी क्लास का सीआर होता है वो प्रिंसिपल के आगे आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, इन द सेम वे वो जो हमने पर्सन रिप्रेजेंट किया था वो रीजनल डायरेक्टर के आगे आपकी कंपनी के सारे प्रोसीजर के बारे में बात करेगा। डिसीजन ऑन कन्वर्जन ऑफ द कंपनी शैल टेक प्लेस इन द जर्नल मीटिंग। तो जो हमने ऊपर मीटिंग बुलाई थी उसमें इसका डिसीजन जो है वो पास आउट हो जाता है। उसके बाद हम नेसेसरी ई फॉर्म भरते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 117 ऑफ कंपनीज एक्ट कि हम जो है उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं उसके हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करते हैं और अपनी ई फॉर्म्स जो है वो फिल कर देते हैं। आफ्टर दैट वो एक एप्लीकेशन जो है वो रीजनल डायरेक्टर के सामने दी जाती है। द नेसेसरी एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन शैल बी ड्राफ्टेड एंड सबमिटेड बिफोर द रीजनल डायरेक्टर एंड एप्लीकेशन हैज टू फाइल विद इन द 60 days आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन। जो हमने जर्नल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया था कि हम अपनी कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसकी एक कॉपी के साथ आप सारे जो भी आपने ई फॉर्म्स भरे, जो भी आपकी एप्लीकेशन थी, वो आप विद इन 60 days जब आपने वो रेजोल्यूशन पास कर दिया रीजनल डायरेक्टर को क्या करते हो, सबमिट कर देते हो। डॉक्यूमेंट्स एंड डिक्लेरेशन एज मेंशन इन रूल 41 नीड टू बी सबमिटेड। ऑब्वियस है कि जो जैसे हमने पहले कन्वर्जन में सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, इसी तरह से यहाँ के भी सारे डॉक्यूमेंट्स जो सेक्शन 41 में बताए हुए हैं वो आप इसके साथ लगाओगे। इसके अलावा लिस्ट ऑफ क्रेडिटर एंड डिबेंचर होल्डर्स वो भी आपको लगानी पड़ेगी। फॉर्म नंबर NIC 25A, the company has to fill the form. This one, after submission, RD may seek some more details or additional information. अब रीजनल डायरेक्टर जो है वो आपसे क्या डिमांड कर सकता है, जैसे भी उसको सही लगे वो आपसे और भी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकता है एंड एज पर द रिक्वायरमेंट आपको वो सारे के सारे विद इन 15 days वो सबमिट करवाने होते हैं। अगर RD जो है वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है विद इन 30 days, तो फिर उसके बाद कंपनी जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकती और मैक्सिमम आपके पास 2 चांसेस होते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट दोबारा से कर सको। अगर 2 चांसेस के बाद कंपनी जो है यानी रीजनल डायरेक्टर ने 2 बार आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी, उसके बाद ये कंपनी जो है वो पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। Order of approval, if no order of approval or rejection or resubmission has been passed by the RD, shall conduct hearing within 30 days upon the receipt of said objection. अगर रीजनल डायरेक्टर ना तो आपको अप्रूवल दे रहा है, ना कोई रिजेक्शन के बारे में बता रहा है, ना ही वो आपको रीसबमिशन के बारे में बता रहा है, तो 30 दिन के अंदर आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो कि आपकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। कन्वर्जन शैल नॉट पास इफ देयर इज एनी केस इन पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी एंड द कन्वर्जन ऑर्डर हैज टू फाइल इन फॉर्म नंबर 28 विद इन 15 days अपॉन द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंपनी के खिलाफ कोई केस पेंडिंग यानी उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, कोई और चीज हो रही है, तो उस केस में कंपनी जो है वो अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकती। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स थ्रू विच अ कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी, टू अ पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू अ प्राइवेट कंपनी। तो अगर मैं आपको बहुत सिंपली भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो हमारे पास प्रोसीजर क्या हुआ, मीटिंग, हमने एक मीटिंग हेल्ड करी, इसके बाद सबसे हमने परमिशन ले ली, हमने कुछ अपने ई फॉर्म्स भरे, वो ई फॉर्म्स जो है वो हमने सबमिट करवाए टू द
अथोराइज्ड पर्सन, इसके बाद वो हमें क्या दे देता है, हमें वो परमिशन दे देता है। और परमिशन देने के बाद जो भी हमारे नेसेसरी चेंजेस हैं रिगार्डिंग द वी कैन से इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स, वो सारी नेसेसरी चेंजेस हम कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनटू अ प्राइवेट company. So if you have any kind of doubt, you can comment me in the comment section, and if you like this series, then kindly like, share and subscribe my channel. Thank you.